Good afternoon, everyone. Today we will read second part of Glimpses of India, Coorg. Okay. Yesterday we have read first part of Glimpses of India, Baker of Goa, and now we will read second part, Coorg. Coorg is a place which is situated south in India. जो साउथ में situated है. The writer of this chapter is Lokesh Abrol. चैप्टर के राइटर कौन है? लोकेश कैब्रोल. यस. Coorg is coffee country, famous for its rainforest and spices. Coorg is a coffee country. It is not a separated country, but the plantation of coffee is in very high percentage, so it is called as Coorg coffee country. Famous मैम 2 मिनट से बताइए. Famous for its rainforest and spices. Yes, Coorg is a coffee country. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Where is it situated? It is situated midway between Mysore and Mangalore. It is situated between Mysore and Mangalore. And it sits a piece of heaven that must have drifted. It is so beautiful as it is drifted from the God. कहाँ से लाया गया इसको? गॉड. इतना ब्यूटीफुल है ये, जैसे कि इसको गॉड से लाया गया है. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Most of the person here are martial. Martial are warriors. तो कौन है यहाँ के लोग? अधिकतर warriors हैं. और यहाँ के जो inhabited means जो यहाँ पर रहने वाले हैं, beautiful women and wild creatures. You can see so many varieties of wild creatures here. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka. It is the smallest district of Karnataka. Is home to evergreen forest, rainforest, spices and coffee plantation. As I told you that in a very large percentage, coffee is planted here, and you can see in a large percent of evergreen rainforest. यहाँ पर rainforest भी बहुत ज़्यादा percentage में बहुत ज़्यादा cover किया हुआ है यहाँ के land को forest evergreen forest में. Evergreen forest cover 30% of district. Now I tell you that how much percent is it covered? 30% of this district covered evergreen rainforest. During the monsoon, it passes enough to keep many visitors away. As you know that in south you can see so much rainfall, and it pass यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया? रेनफॉल के लिए. enough to keep many visitors away. और यहाँ इतना रेनफॉल होता है कि जो विजिटर्स को मानसून के टाइम पर यहाँ से दूर रखता है. इट मीन्स नो विजिटर वांट्स टू गो देयर एट द टाइम ऑफ मानसून, बिकॉज heavy rainfall, we can see heavy rainfall there. Yes, the season of joy commences from September and continues till March. Okay, visitor का time कब से start होता है? Commences means start. कब से start होता है? From September and continues till March. September से start होता है. As you know that till September the rainy season has been finished. तो इसका जो मानसून सीजन है उसके बाद मानसून सीजन कब खत्म होता है? सितंबर से खत्म होता है, मतलब सितंबर तक खत्म हो जाता है और मार्च तक कंटिन्यू करता है. इट मीन्स इट इज द बेस्ट टाइम फॉर द विजिटर. ये बेस्ट टाइम है विजिटर के लिए. द वेदर इज परफेक्ट. ऑब्वियसली जो वेदर है वो क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट. with some showers thrown in for good measure. It means rainfall have, but not is a very heavy rainfall. There is only showers. There are only showers. क्या होती है वहाँ पे? सिर्फ showers होती हैं. मतलब बहुत हल्की बारिश होती है. The air breeze of invigorating coffee
एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग मीन्स एनर्जी गिविंग। जो एयर है ना, मैंने बताया बहुत ज्यादा कॉफी है तो वहां की जो एयर है वो कैसी होती है, बहुत ही एनर्जी गिविंग वाली, जो उसमें कॉफी की जो स्मेल होती है, कॉफी की स्मेल की वजह से वो कैसी होती है, बहुत ही इनविगोरेटिंग होती है। कॉफी एस्टेट एंड कॉलोनियल बैंगलोर stand tucked under tree canopies in prime corners. It's, yes, tucked, colonial bungalows. Colonial bungalows means these bungalows are made at the time of Britishers rule. When Britishers came in India and ruled over us, then these type of bungalows made, and these are known as colonial bungalows. तो जो colonial bungalows यहाँ पर हैं वो yes, coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree. Tucked means situated. कहाँ पर situated है वो? Under tree. Tree canopy. Yes, tree canopy. Canopy, it means you know that trees in evergreen rainforest are very dense. कैसे होते हैं वहां पर? बहुत डेंस होते हैं। तो डेंस के होने की वजह से वो क्या बन जाते हैं? लाइक कैनोपी, शेल्टर टाइप में बन जाते हैं। वो बहुत हैवी होते हैं जिसकी वजह से वो शेल्टर, जो बंगलोज हैं वो इनकी शेल्टर में हैं। इट मीन्स इनके अंडर में है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या रहता है, थोड़ा शेड रहता है। ठीक है। अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, प्राइम मीन्स बेस्ट कॉर्नर्स हैं ये इस कैंप पर विजिटर्स के लिए। द फायरफुली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेसेंट। फायरफुली जो वॉरियर है यहाँ के, इट मीन्स जो यहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट इनहैबिटेंट्स हैं यहाँ के, पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ, किसके डेसेंट है वो? डेसेंट मीन्स ओरिजिन, जो उनका ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ग्रीक या अरेबिक। इट मीन्स या तो वो अरेबिक है या ग्रीक से उनका ओरिजिन हुआ। एज वन स्टोरी गोज, किससे पता चलता है? ये एक स्टोरी देखिए। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। इट मीन्स जब अलेक्जेंडर की आर्मी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर ने इन्वेडेड किया था इंडिया को, तो उस टाइम पर वो कौन से वे से आया था? साउथ के वे से आया था और ही सेटल्ड हियर। वो क्या हो गया था? यहाँ पर सेटल्ड हो गया था। वो वापस, ही डिडंट रिटर्न बैक, वो वापस नहीं गया था। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन। और यही जो वहाँ के अलेक्जेंडर के जो पर्सन थे, उन्होंने ही यही के जो कॉमन रेजिडेंट थे उनके साथ क्या कर लिया था? मैरिज की थी, जिसकी वजह से उनका जो कल्चर है वो भी अपरेंट होता है, वो हमें विजिबल होता है किसमें? यहाँ के लोगों में। यस, these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition। जो यहाँ का जो उनका मार्शल ट्रेडिशन है वो भी apparent होता है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर मेन स्ट्रीम। आवर मेन स्ट्रीम में जो हमारे कल्चर है, जो यहाँ के कल्चर है, वो काफी यहाँ के कल्चर से इट इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज it has the association of Alexander's or Greek armies. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus। ये किससे, जो ये स्टोरी है, इसकी जो थ्योरी है अरब ओरिजिन की, वो किसको कैसे सपोर्ट करते हैं हम? देखिए, जो कोडावूज के जो रेजिडेंट जो पर्सन्स हैं वो एक तरह की ड्रेस पहनते हैं। जैसे कोडागू एक श्रग टाइप का होता है, जैसे श्रग नहीं होता, इस टाइप की एक श्रग होती है, और यहाँ पर एक रोप, एक वो होती है, यहाँ पर रोब होता है, वेस्ट बेल्ट, जिसको वेस्ट बेल्ट बोलते हैं, वॉर्न बाय, और ये कैसी होती है? एम्ब्रॉयडर्ड होती है, जो यहाँ के कोडावूज जो है यहाँ के लोग हैं वो पहनते हैं। नॉन एज कुफिया, जिसको किस नाम से जाना जाता है? कुफिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया। टू वर्ड्स आर हेयर, फर्स्ट इज कुफिया एंड सेकंड इज कुफिया।
Kufia. Yes, the people who won the dress like shrug is known as Kufia, and the Arabians wear Kufia. जो अरेबियन है वो क्या पहनते थे, अरब्स एंड कुर्ड्स, वो कुफिया, उनकी जो ड्रेस है उसको क्या बोलते हैं, कुफिया. और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी ड्रेस को हम बोलते हैं कुपिया. Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. जो कुर्गी का होम्स हैं वहाँ के, वहाँ बहुत ट्रेडिशन है किसका, हॉस्पिटैलिटी का. इट मीन्स दे वेलकम देयर गेस्ट हार्टिली. वो अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं बहुत अच्छे से. एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, और वो बहुत ज्यादा विलिंग होते हैं जो उनकी अपनी स्टोरीज हैं, अपने जो उनके न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्योर, टेल्स ऑफ वैल्योर्स मीन्स जो स्टोरीज हैं उनकी ब्रेवरी की, वैल्योर मीन्स करेज की, जो उनकी स्टोरीज हैं उनको शेयर करने के लिए वो बहुत विलिंग होते हैं. रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू देयर, जो किससे रिलेट होती हैं, टू देयर सन्स एंड फादर्स. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. मैंने बताया यहाँ के मोस्टली लोग कैसे हैं, वॉरियर्स हैं. तो यहाँ पर जो एक और जो बेस्ट विजिटिंग प्लेस है कुर्ग रेजिमेंट. कौन सा है, कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड. ये मोस्ट डेकोरेटेड इट मीन्स हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स इन ब्रेवरी इन वॉर. यहाँ पर के लोगों को बहुत मैक्सिमम नंबर में जो अवार्ड्स हैं वो मिले हैं, किसमें, ब्रेवरी में. तो यहाँ के लोग जो हैं वो पूरा जो यहाँ का कुर्गी रेजिमेंट है वो पूरा डेकोरेटेड है, मेडल से, शील्ड वगैरह से, अवार्ड से वो क्या है, डेकोरेटेड है. जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी. जो जनरल इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी. जो फर्स्ट चीफ है इंडियन आर्मी का कौन है, जनरल करियप्पा वाज आल्सो बिलोंग टू हेयर. वो भी कहाँ से बिलोंग करते थे, इसी प्लेस से बिलोंग करते थे. ही वाज आल्सो ए कुर्गी. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Even यहाँ के लोगों को परमिट किया गया है. The people of this place are allowed to carry firearms. It means they can carry a weapon with them without any license. Yes, students, mute yourself. वो क्या कर सकते हैं, वो आर्मी यहाँ के जो पर्सन है वो वेपन्स को भी कैरी कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के कर सकते हैं. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Mahasir. कहाँ बंदे बहुत ज्यादा हैं यार, कहाँ उतार दिया, बंदे बहुत हैं यार. अरे देख देख देख, अरे भाई रिवाइव कर दे भाई. Yes, the river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. जो river Kaveri, यहाँ पर कौन सी river, which river is found here? Kaveri obtains its water from the hills. From where it is originated? It is originated from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish. Mahasir is the name of a fish. Abound in these waters. यहाँ पर आप you can see Mahasir fish here, and kingfishers dive for their catch. If you come here, then you can find so many creatures. Which one are first one is Mahasir, kingfisher dive for their catch. आप kingfisher को भी देख सकते हैं यहाँ पर catch करते हुए. While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. यहाँ पर आप स्क्वायरल्स को देख सकते हैं, लंगूस जो क्या करते हैं, वो अपने जो फ्रूट जो वो आधा खाया होता है उसको वो ड्रॉप कर देते हैं किसमें, वाटर में. एंड द रिपल इफेक्ट, और वो किस चीज को देखते हैं, रिपल जो है वेव. व्हेन यू थ्रो समथिंग इन द वाटर, वेव्स आर क्रिएटेड, वेव्स क्रिएट होती हैं. तो उन्हीं वेव्स को क्लियर वाटर में होती हैं, वो उन्हें देखते हैं, वो वहां पर स्प्लैश से वो एंजॉय करते हैं. एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ and scrubbed in the river by their mahots. You can see so much number of elephants here.
एलिफेंट जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं, एंड Bath. स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ, और जो उनके माउथ होते हैं, जो उनके ऑनर होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं उनकी बॉडी को, उन्हें बात करने के लिए. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing. The most laid back individuals become converts. The most laid back individuals became converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. So many adventures, sports game you can see here. Laid back means relaxing. बहुत सी relaxing जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं. स्पोर्ट्स गेम किस किस तरह की स्पोर्ट्स गेम है? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. आप यहाँ पर अगर आते हैं तो यू कैन एंजॉय सो मैनी स्पोर्ट्स गेम. Yes, numerous walking trails in this region are a favorite with trackers. यहाँ पर जो बहुत सारे walking trails बन गए हैं. Walking trails में जब बहुत ही हम किसी ऐसा जो रास्ता है जो जिस पर कभी कोई ट्रैवल नहीं करता और उस पर कंटिन्यूटी से कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, तो एक ट्रेल बन जाता है, एक पाथ बन जाता है. उसको हम क्या कहते हैं? वॉकिंग ट्रेल. पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग. इट मीन्स जो पाथ हमारा वॉकिंग से क्रिएट होता है. ये भी बहुत फेवरेट है यहाँ पर किसके बीच में? ट्रैकर्स के बीच में. इट मीन्स हु कम हेयर फॉर ट्रैकिंग. जो यहाँ पर विजिटर्स आते हैं ट्रैकिंग के लिए, उनके लिए ये एक फेवरेट ट्रेल है. बट bees and butterflies are there to give you company. So many animals will give you company here. वो यहाँ पर आपको क्या देंगे? कंपनी देंगे. Like you can see so many animals or creatures, birds, bees and butterflies, macaws, malabar, squirrels, langurs and slender lories. All are the types of animals. Okay. Keep a watchful eye from the tree canopy. वो आपको क्या करते हैं? वॉच करते हैं. वो कहाँ से वॉच करते हैं? ट्री कैनोपी. जो ट्री के अंदर शेल्टर बना होता है ना, उस वहां से आपको क्या करते हैं? वॉच करते हैं. आई डू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट. आप यहाँ पर जो नरेटर है वो बताता है कि मैं किसको प्रेफर करूंगा? स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट. इट मीन्स वो किसको देखना चाहेगा? वाइल्ड एलिफेंट्स को. The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. If you will go to the Brahmagiri Hills, you can see a beautiful sight, an open wide sight here. आप panoramic में बहुत ही बड़े जो साइट होता है, view of a wide area of land. You can, if you go to the Brahmagiri Hills, you can see a panoramic view. You can see an open wide view of land. The entire misty, और कैसा लैंड है वो? पूरी तरह से मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग. आपको कैसा देखने को मिलेगा? मिस्टी मीन्स फुल ऑफ मिस्ट. वो किससे फुल है? मिस्ट से फुल है. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadamu. अगर आप ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, आप एक रोप ब्रिज, वहां पर रोप से बना हुआ ब्रिज है, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो आप क्या कहाँ जाते हैं? वहां पर एक आइलैंड भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है जो 64 एकड़ के एरिया में बना हुआ है, जिसका क्या नेम है? निसारगदामु. रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट. जहाँ पर आप यू कैन सी सो मैनी बुद्धिस्ट और तिब्बतन पीपल देयर. आप वहां पर किसे देख सकते हैं? तिब्बतन पीपल्स जो होते हैं आप उन्हें देख सकते हैं. मॉन्क कैसे पर्सन होते हैं? वो मॉन्क्स आपने देखे हैं ना. मॉन्क्स कैसे होते हैं? जो ऑरेंज कलर की ड्रेस पहन के रहते हैं. यस. Tibetan settlement at nearby by Lakupi is a bonus. रनिंग इनटू, अगर आप बुद्धिस्ट मोंक की तरफ जाते हैं,
जो इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है एट नियर बाय, कहाँ पर, एक और विजिटिंग साइट बताई हुई है यहाँ पर, बायलेक्सिकू इज अ बोनस। ये आपको किसके मतलब आप एज ए विजिटर यहाँ पर आते हैं, देन यू कैन फाइंड बायलेक्सिकू इज अ बोनस फॉर यू, आपके लिए क्या है वो बोनस है। द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching to the heart and soul of India. जो ये बुद्धिस्ट हैं, monk हैं, they mostly wear dress of red and ochre. Ochre means orange. It means red and yellow color. They mostly wear the dress of red and yellow color and orange. Are amongst the many robes पहनते हैं। robes इनकी dress जो है उसे कहा जाता है robes पहनते हैं ये। wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. It means visitor can found heart and soul of India. It means it's a very beautiful place and you will find it as a heart and soul of India in Coorg. Okay, let's discuss the question of this chapter. Where is Coorg? Yes, where is Coorg? Coorg is situated Ma'am, Coorg is South of the a India. small district which is situated in Karnataka. yes and yes, Between Mysore and Mangala.